Very good morning and uh, very warm welcome to the Power BI training by Geeks. This is your first session for Power BI training. So I will start with my introduction. I am Ravi with more than 15 years of experience in reporting field, especially in Power BI. Power BI I have experienced 7+ years and I have implemented at least 10 plus project end-to-end 10 projects, and also I have created multiple complex reporting solution for different organizations. I'm a working person, right? Full-time work with MNCs, right? And I have a training experience of Power BI SQL for last 7 years, 7, 8 years. Okay. So, Gayatri, can you brief about yourself so that I can know about your background, educational background, and if you are working or not, like that. Okay, sir. Good morning, sir. My name is Gayatri. I'm from Tamil Nadu. Uh, I'm currently living in Hyderabad. Uh, I'm completed my BSc Biotech. I'm housewife. That's it, sir. Oh, okay, okay, great, great. So, when did you do your BSc? 2012, sir. Okay, in between, I mean, you did not work anywhere, right? No, sir. Okay, 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 Mm. okay. Sure. So, any idea Okay, sir. about something Excel, something? Have you ever seen Yeah. work? Yes, sir. Excel and SQL little bit. Okay, okay. I mean, you work some little bit, right? SQL and Uh, Excel, right? I know, sir, but I'm not working Excel or SQL. Okay, okay. That is great. That is great. Okay, okay. So, do you know Okay. about Power BI? No, sir. Okay. This is, I mean, this session is related to Power BI. Power BI is data analytics tool, right? So, Mm. in the market, there are a lot of analytics tool. Like Power BI is one of the leading analytics tool. Others are like Tableau, Cognos, Excel. Up to some level, it is called data analytics tool. Right. So, but Power BI is very famous. That's why everyone want to switch to the Power BI basically, right? Okay. So, uh, j- okay. So, any idea about data analytics? What we are going to do in data analytics? No, sir. Okay. No, sure. Mm. Uh, this is, let me do this. You can see my screen, right? Hello. Hello. Hello, sir. Can you see my screen? Yes, sir. Okay. So this is a Excel sheet basically. Okay. A sales data, Okay, sir. right? Mm. So in this format, if someone asks that, tell me the country, the state, your year, in which year or which country the sales is the maximum. You list down the five most selling product from this list. All the information are there, right? But this is from this, it is very tough, right? It's a hodgepodge, right? So very tough to get the insight from this Excel sheet, spreadsheet. But using the Power BI, we can get the information easily. For example, see, this is a basic Power BI reporting. Right? So if I am, this is called a filter. I'm just introducing the Power BI, right? If I click on Mexico, it will all the information displayed here will with it will be with respect to Mexico only, right?
If I in max, I am clicking on USA, it will display all the data, current transaction, anything, all the related to the USA. If I am clicking on any uh, state, a city here, for example, these are the different states. So if I am clicking Washington, it will display all the information related to Washington. Okay. So reporting is very easy when you are using the Power BI. For example, there is a bookmark concept here. If I am clicking here, so what we have in the bookmark, what feature I have set in the bookmark. For example, I have set that in bookmark we should show USA. From USA, Portland should be the state. All the information related to this should be shown, right? So a spreadsheet like this can be converted like this, like this dashboard. So it's very easy to get the insight for our business growth, right? For, for example, here we can see the, I mean, month and year wise, I mean, sales here, here target, right? Here product brand wise, total transaction, total profit, all the thing. I mean, this is a basic graph. I will show other uh, complex graph also, right? So basically, power using the Power BI, we can convert this rough data set into the dashboard, right? Attractive dashboard, dynamic dashboard. In the single click, we can get all the information, right? So what is basically data analytics, right? So data analytics is a setup process, architecture, and technology which convert our raw data into the meaningful information like this. Raw data means this one is the raw data in Excel sheet, right? From here we cannot get any insight, meaningful insight. So this raw data can be converted using the data analytics tool. And from those, I mean, through this tool, we can convert the raw data into meaningful information using different graph and chart. And from those graph and chart, we get insight to grow our business or to solve our business problem. Basically, how? For example, let's assume that there is a company Swiggy, right? In some area, they have maximum customer. Most of the customer from the a particular area, and in some area it has very less customer. So through dashboard reporting, they can get that in particular area their customer are very less, so they can focus on that area, right? For example, any company has multiple projects. For Tata Group have multiple projects. Most of the revenue are coming from the particular product. For example, Tata Group, most of the revenue of the Tata Group coming from TCS, right? Other products are not contributed, right? So what are the product where we are not getting profit? We can analyze this. In which area we are getting the losses? So using that graph, we can get that area, that product, so that we can focus on that, right? Gayatri, Yes, sir. are you getting? Actually, I like not two. Ah, audible, sir. No, no, are you getting or not? I like the two-way Ah, communication, right? getting, sir. Okay, right. So if you can unmute yourself when there is a question, right? While explaining, so you can make me stop. You can ask anytime, right? Okay, 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 sir. Okay, sir. Right. So see,
for this course now, there is a requirement that you should have a laptop, right? And you should have also have a notepad so that you can note down some basic points, right? Which are being asked in the interview, basically, right? So this is the whole idea behind the data analytics. So it will any tool. I mean, for example, Power BI is a data analytics tool. Tableau is a data analytics tool. Excel is an analytics tool. Cognos. So what are the purpose of this analytics tool? It convert our raw data. Raw data means which is coming from the source. So this is source data, Excel data. Source means from Excel, from SQL Server, from SharePoint, from Azure. Any data coming from the source, that is the raw data, because that is not cleaned as per our requirement, right? So that is why it is called the raw data, which is coming from the source. So any data analytics tool convert our raw data into the meaningful information using different graph and chart. You can see here, this is a beautiful graph that is made up of from only the that Excel sheet, that is a raw data. Creating the graph and chart is not the only ultimate purpose of a data analyst, right? What is ultimate purpose of data analyst? Using those graph and chart to get the insight, and using those insight to solve the business issue. Ultimate aim is the to solve the business issue, right? Not creating graph and chart. That is a medium. Creating graph and chart is a medium, so that they can get the insight from that graph and chart to solve the business issue. Business issue to grow the business, right? For example, I told you example that let's for a company, right? They have multiple product. So for some product they are getting most of the profit, and for some product they are getting losses. So they can easily identify which product, in which product they are getting losses, and particularly in which area, right? They they can focus, they can customize their customer behavior using the customer login on website. Customer age, they can advertisement according to the customer age group, male female choice, right? Area wise choice, multiple thing we can get the information regarding a customer behavior, so that I can customize our product, we can customize our advertisement, right? So that it will compatible with the audience. Okay. Okay, sir. So basically today, I, okay, already started, but I'm going to discuss these all the things. I mean, regarding the what is the data analytics, what is the different data analytics tool, and what is the importance of the Power BI among the all the data analytics. What is the different component of the Power BI, and what are the steps involved in the Power BI reporting, and what are the Power BI admins access and security. I mean, overall basic idea about Power BI, and what is the career. If I know the Power BI and SQL, what is our career path ahead? Basically, this is a very important point, right? Because I am learning something, so how we are going to use that as a career option, that is the most very important, right? So as I explained that. Data analytics is a setup process, architecture, and technology which convert our raw data into the meaningful information. Meaningful information using the graph and chart. Graph and chart is called a visual in the terms of Power BI. And using that graph and chart, we can solve the business problem, yeah, grow our business, right? So what are the tools, analytics tool in the market? That is Power BI from which company? Power BI is from which company? Do you know, Gayatri? Hello, sir. Power Sir. BI, Power BI is from which company? It is a product from which company? Don't know, sir. Okay. It is from the Microsoft, right? Excel is also from the Microsoft.
SQL Server is also from the Microsoft, right? 90%. Yes. Mm. Azure is from the Microsoft. Okay. So and Tableau Okay, is sir. from the Salesforce. Excel is Cognos from the IBM. ClickSense from Click. Right. These are because no, we should Mm. along with Power BI, we should basic idea about other competitor, right, in the market. Sir, one question. Hmm. ये Power BI and Click uh, sense Excel वो tools है ना? Yeah, yeah. These are the tools. Okay, okay, sir. Okay. These are the tools, right? Gayatri, the language is no barrier, right? I can speak Hindi, English, no issue, right? Ultimate aim is to get Okay. the things in Telugu, data, right? sir. Telugu, sir. Sorry? No, Telugu. I'm Telugu. from Delhi. No, no, I'm from Okay, Delhi okay, actually, okay, right? No okay, issue sir. will be Okay, there. sir. You can Mm. address anyone. You can Speak write the Hindi, na? inquiry. Yeah, I speak Hindi, right? Okay, sir. Okay, right. Mm. So these are the data analytics tool, right? Similar to the Power Okay. BI. All the tool work similarly. Ultimately, we are going to create the report using these tools, any tool. But why you choose Power BI, I will explain later, right? In this lecture only, right? So data analytics, earlier they are using data analytics. Now they are using the, this is very important. Now they are using business intelligence tool, BI tool. Maybe you know, right? In the place of data analytics, earlier they are using where there is some manual work. But now we are using AI. AI feature, intelligence feature in our nowadays advanced data analytics tool. Power BI, Tableau is a advanced data analytics tool. Earlier, very manual like Excel. Excel was a data analytics tool that time, but that is very manual. So that time they are saying data analytics tool. Now they are using the term BI, means business intelligence tool, basically, right? So you should not confuse your data analytics with the business intelligence tool. Both are the similar, but business intelligence name is a modern name, right? Earlier they are using the data analytics too. So if someone asks that what is a what does mean by business intelligence, what does mean data analytics, both are the same. Okay, but nowadays they are using where when we are using multiple machine learning terms, AI, artificial intelligence into the reporting purpose, right? So in this scenario they are using business intelligence term, right, to explain the data analytics tool. Okay. Uh, as we, as we are discussing that there are multiple data analytics tool in the market, like Tableau is there, Cognos is there, Power BI is there. Why you are going to use why you are going to use Power BI? In the interview, this is a very important question, right? After they ask the what are other tool in the what are the other BI tool, business intelligence to a data analytics tool in the market, the next question would be why among all these things tools you are using Power BI? That is a valid question, na, Gayatri? Hello? Hello, sir. Yeah, you can Audible, sir. unmute. Yeah, Mm. you can unmute because you are a single one, right? So this is a Okay, sir. very valid question, right? Why you are going to Mm. use only Power BI among all other tools? There are other tools, na? So why they are you going to use? There is a valid reason. There should be valid reason of so much uses of the Power BI, right? So this one is the one Awesome. of the most important reason why we are learning the Power BI only, right? Not the other two, because it has it is a this is a data showing of 21, right, 2021. Now Microsoft contribute, sorry, more than 40% market share in the data analytics show. Do you know this graph? Are you getting this graph? What is the what Ah, it is showing? sir. Sir. Market share of top business intelligence software in 2021. Right. So if our Mm. multiple business intelligence tools softwares are there like Power BI, Tableau, Cognos, Spotfire. So what are the market share? Market share means 100 if throughout the world, every all the company are spending 100 rupees, right, in the data analytics field, right, the business intelligence field.
So out of 100, more than 40 rupees are going to the Microsoft Power BI. This is the demand, level of demand. This is showing the level of demand of the Power BI worldwide, right? And Tableau is less than, now they are less than 16%, right? They are getting Ah, lesser and lesser, and share of the Power BI is keep on increasing nowadays. A huge demand are coming, right? So mm, this is the one of the reason why everyone going beyond Power BI, right? So what is the reason for this popularity? What are the reasons for this much popularity of the Power BI? So there are 5 to 6 important reasons behind that. The first one among is that it is from the Microsoft. The first reason why Power BI is so popular is it first, an important reason is that it is from the Microsoft company. So what is the importance of being from the Microsoft family? sir. Oh, why? I mean, I am saying that it Power BI Mm, is so popular because it is the yes, product sir. of Microsoft company. Sir. Hello, sir. Yes, yes. So it is Is from it the micro. audible? Mm, Yes, yes. It is from the Microsoft company. So why is so important that it is from the Microsoft family? So it is popular. mm, no, sir. No idea. Okay, okay. No issue. For example, see, if some product is from the Reliance, Geo. For example, Geo, right? Ah, sir. Mm, Geo got so popularity within a small span of time, mm, right? In yes, sir. telecom sector, Geo control most of the, I mean, more than the 40%, 50% customer, telecom customer is from the Geo only. In the small span of the time, uh, Geo captured the market, right? Because Mm, this is a very biggest company, right? yes, sir. Biggest company, Biggest company, Geo. right? Like that, Microsoft in the field of software is the biggest one, giant. There is a word giant, right? It's a market hunter. It is called a market hunter. So it will control the market through using different business meanings. Like they will give the freebies, right? They will start giving the 3 months, right? Licensing cost is zero, like that. So they can capture the customer using that. So that's why it is very famous, right? It is from the Microsoft family. And see, in the Power BI, what we do now, for example, let's open a sample Power BI in another sheet. I am opening a new Power BI uh, file. Okay. So in creating the report, what we do first now, we connect our raw data, right? If I am creating any report in the Power BI, so first we have to connect. This is the Power BI, is the fresh file. Okay. Hello. Sir, audible, sir. Okay. This is a fresh file, right? Where you are going to create a report, right? This is a Power BI, right? Power BI page where we create the report here, right? Like that. This is the same thing. Here I have created the report. This is the Power BI. I have created the report. So I have opened a fresh file here, right? So create a report. First, what we have to do? We have to get the data from that source, right? So this is get data. We have to click on get data, right? And load the data from the source. Source might be like the SQL.
So what is the use of SQL Server? What is a SQL Server? I mean, what is the SQL use of? Server Mhm. date database sir. मतलब Okay, I mean, we can store the data right there, right? Hello. store the data. Yeah, Sir. we can store the data there, right? So this is a storage like Excel. We can store the data like Azure. We can Store store the the data. data, Excel right? or SharePoint. SQL. These are the data storage tool, right? These are also tool Mm. which store the data. We use data in Excel. There is a limitation, but in the SQL Server we have store huge data. Okay. Okay, sir. So first thing in Power BI, any reporting, we have to import, we have to load those data. How to load? There is a get option, get data option. I will go into detail, but I am explaining here basic thing, right? So first, which type of data I have? From data is where? In my case, data is where? For your case, you can use the data from the SQL Server. I mean, it depends, differ company to company. Some company prefer to store the data on the SharePoint. Some company prefer data storing on data SQL Server. Some company prefer storing data in the small company preferring data storing data in the Excel. Hello, sir. Okay. So in my Okay, sir. case, uh, data is stored in a Excel. Excel in the sense this one. Here data is stored, right? Our data is stored here, right? Mm. Mm. So you have to import, load this data into our Power BI, right? How to store, how to load? Mm. We have to we have to click on those type of data. If I am Mm. loading data from the SQL, I have to click on SQL Mm. Server. If I am loading our data from CSV, we have to click on this. If I am loading from data from the web, we have to uh, click on web. Web means any website. But here Okay, we sir. are loading data from the Excel, so I am clicking on Excel workbook. Here I then I go to that path, that particular path, right? Mm. Like so, this is a path, Right. right? Mm. So I just select this one and open. So this is called a connection. So Come. this Excel file have three table: order table, people table, and return table. So if I want to load only the order table, so I can Sir, just your click on screen is not visible, sir. not visible. Not visible. Just give me. It is not visible. Why? Let me share it again. Just give me 1 minute, Gayatri. Just 1 minute. Okay, sir. Hello, Gayatri. Now it is Sir. is it visible? Yes, sir. Okay, right. So I have I mean connected this Excel sheet. This Excel sheet have has three table like order, people, and return. Right? Okay. Right, sir. Okay, sir. So out of this three table,
if I want to load only one table, this one, I can check this one, order table. If I want, if I need only one table for our reporting purpose, if I need two table, I can check this one, right? These two table, okay? Hmm. And just click on either load or transform. I will click on Transfer. transform. I will explain what does mean by that, right? So this data has been loaded in the Power BI, right? So I was basically explaining this one, the why we prefer the, I mean, Power BI. सर So ऑन yeah, सर ऑन क्वेश्चन yes, yes. कैसे सर वो मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ता पावर बीआई? हाँ हाँ, मैं आपको बताऊंगा ना, आपको बताऊंगा, राइट? ओके आई विल एक्सप्लेन। ओके आपको ओके। हिंदी समझ में आती है? हाँ आते सर। ओके। तो आप हिंदी आते में सर। कंफर्ट, आपको हिंदी में कंफर्टेबल है, जैसे आप अभी सिंगल हो तो मैं हिंदी में पढ़ा दूं, बता दूं, राइट? हाँ ओके सर। मतलब इंग्लिश थोड़ा सा, अगर मतलब कौन सा आपको लैंग्वेज मतलब कंफर्टेबल होगा? मतलब तेलुगु और हिंदी। ओके ठीक, ओके ठीक है, मैं हिंदी में बताता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके सर। मैं अभी इंस्टॉल करवाऊंगा आपके सिस्टम में, राइट? आपको ओके। सिस्टम, आप सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड हो ना? नहीं अभी मैं मोबाइल में देख रहा हूँ सर। हम्म। हम्म। अच्छा, सिस्टम आपके पास है ना? हाँ है सर। ओके। तो अभी हम्म। सेशन के थोड़ी देर बाद ना आप लैपटॉप से कनेक्ट हो जाना, ठीक है? फिर मैं इंस्टॉल कर ओके दूंगा, ठीक है? ओके। हम्म। ठीक है, ओके। सो मैं एक्सप्लेन ये कर रहा था कि पावर बीआई इतना मतलब फेमस क्यों है, राइट? पॉपुलर क्यों? तो फर्स्ट रीजन यही हम्म। था कि ये जो पावर बीआई है, ये किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ठीक है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ओके प्रोडक्ट है, सर। ठीक है? हम्म। तो डेटा स्टोरेज, और जो मैं बताया कि पहला स्टेप जो होता है, आपको डेटा को कनेक्ट करना होता है, राइट? ठीक है? तो इस जो जहां से आप डेटा हम्म। कनेक्ट कर रहे हो, ले रहे हो ना पावर बीआई में, वो टूल भी अगर माइक्रोसॉफ्ट का है हम्म। तो कनेक्शन इजी होगा। जैसे मान लो कि ये टूल है, जैसे टेब्लू एक टूल है, ठीक है? मतलब जो पावर बीआई जैसे टूल है, ठीक है? टेब्लू, ठीक है? हेलो, हाँ ओके सर। ठीक है? वो हम्म। टेब्लू पावर बीआई जैसे टूल, लेकिन वो कनेक्ट करना चाहे एक्सेल से या सिक्वल सर्वर से, तो उसमें मतलब मुश्किल होगा, टफ होगा। क्यों? क्योंकि टेब्लू दूसरी कंपनी का है और सिक्वल सर्वर दूसरी कंपनी का है। दूसरी कंपनी का। हाँ, तो उसमें कनेक्टर दोनों अलग इंस्टॉल है। करना पड़ता, हाँ अलग अलग, तो देर इज इशू, राइट? हाँ सर। इसमें पावर बीआई है और एडब्ल्यूएस को कनेक्ट करना आपको, डेनेडो दूसरी कंपनी का कोई स्टोरेज, डेटा स्टोरेज वाला आपको कनेक्ट करना है, ठीक है? दूसरी कंपनी का, तो इसमें हम्म। होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग कंपनी का है ना, दो अलग अलग फैमिली है, तो देर इज ए कंपेटेबिलिटी इशू। ऑब्वियस चीज है, मतलब अगर सोसाइटी में कहा जाए, दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग लोग हैं, ठीक है? तो अगर एक ही फैमिली के है तो आप कैसे भी बात कर लोगे, राइट? हम्म। इट्स वेरी इजी। तो हम्म। वैसे ही अगर मान लो कि हमको डेटा लोड करना है ऐसे टूल से जो उसी कंपनी का है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट से क्या है, शेयर पॉइंट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का है, एजोर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का है, वन ड्राइव क्या है, माइक्रोसॉफ्ट से, सिक्वल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है? तो इनसे डेटा हाँ लेना सर। आसान होगा, राइट? लेकिन अदर हम्म। कंपनी से कनेक्ट करना टफ होता, ठीक है? तो इस केस में क्या है, हम्म। माइक्रोसॉफ्ट जो मोस्ट ऑफ द कंपनी है ना वर्ल्ड वाइड, ठीक है? जैसे मैं आईटी में ही हम्म। जॉब करता हूँ, हम्म। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है ना, वो डेटा स्टोरेज हम्म। के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल यूज करती है। जैसे शेयर पॉइंट यूज करती है, सिक्वल सर्वर यूज करती है, एजोर एजोर यूज करती है, ठीक है? तो हम्म। ज्यादातर जो कंपनी यूज करती है डेटा स्टोरेज के लिए भी ना, माइक्रोसॉफ्ट का। तो पावर बीआई को हम इजिली डेटा सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये रीजन है इसका, ये माइक्रोसॉफ्ट से है तो क्या है, हम डेटा सोर्स को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर डेटा स्टोर भी कर रही है कंपनी ने, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है? जैसे मान लो एजोर पे ओके सर। डेटा है, ठीक है? बट हम पावर बीआई की जगह टेब्लू यूज कर रहे हैं। टेब्लू सेल्सफोर्स का हो गया, एजोर किसका हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, ठीक है? तो इससे डेटा ओके सर। लेना एजोर से टफ होगा,
क्योंकि वो दूसरी कंपनी का है। हम्म। बट पावर बीआई में आसान होगा क्योंकि सेम कंपनी का है। मतलब इसमें कोई कनेक्टर की जरूरत, कनेक्टर अलग से कोई चीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे दूसरी कंपनी का कोई करेगा ना तो अलग से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, लेकिन यहाँ पे देखो आप इतने सारे डेटा को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। जैसे एजोर है, जो भी है, ठीक है, इतने सारे एजोर एसक्यूएल डेटाबेस सारा चीज आप कनेक्ट कर सकते हो। 250 प्लस डेटा सोर्सेज यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं यही बताने वाला था कि ये क्यों फेमस है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट से, ठीक है, किससे, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट से होने क्या है कि डेटा को हम कनेक्ट, पावर बीआई को डेटा सोर्स से इजिली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये होगा। ठीक है, मतलब तो वो डेटा अभी अभी एक्सेल में सीक्वल में है ना, ये हाँ, डेटा नहीं पावर बी में कन्वर्ट करना पड़ता। मतलब लाना मतलब पड़ता, पावर बीआई में ये लाना पड़ता है। लाना हाँ, पड़ता। हाँ, मतलब पावर बी में क्या करते हैं सर, वो चार्ट वगैरह ग्राफ हाँ, वगैरह करते वो। हाँ, राइट। हम्म, अभी मैं आपको क्रिएट करके बताऊंगा, हम्म, ठीक है। अभी मैं क्रिएट करके हम्म, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, मतलब ओके मैं पहले ही ओके बता सर। देता हूँ, ठीक है, पावर बीआई में क्या करते हैं। ठीक है, हम्म, देखो, हम्म, शुरू से मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने सिक्वल, आपको पता है, हाँ सर। पता। ठीक है, तो हम सिक्वल से डेटा लाते हम्म, हैं। ठीक है, हम्म, ये मेरा सिक्वल ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ये सिक्वल है, ठीक है मेरा। इसमें दिख रहा है स्क्रीन मेरा ना, हाँ डिफरेंट हाँ सर। डेटाबेसेस, ठीक है, डिफरेंट हम्म, डेटाबेस है, ठीक है ये। हम्म, और ये डेटा टेस्ट नाम का डेटाबेस है, उसमें डिफरेंट एक टेबल है। ठीक है, जैसे दिवाली सेल्स का एक टेबल है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्वेरी करूँ, व्हाट आर द डेटाज क्या है दिवाली सेल्स में, तो आप यहाँ पे सीधे क्या करते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिवाली सेल्स, राइट, और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दोगे। ठीक है, ये डेटा आपको आ जाएगा। ओके, ओके सर। ठीक है, तो ये चीज, जो ये डेटा है ना दिवाली सेल्स, मुझे क्या लोड करना है वहाँ पे, किसमें, पावर बीआई में। मतलब यहाँ से SQL सर्वर डेटा उठा कर पहले हमको पावर बीआई में लोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे कनेक्ट करते हैं पावर बीआई को, देखो, ये पावर बीआई है आपका, ये पावर बीआई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डेटा सोर्स क्या है, आपका डेटा कहाँ से लाना है आपको, अभी कहाँ से लाना है डेटा, SQL सर्वर से ना। सर सीक्वल सीक्वल सर्वर में। हाँ, तो अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पहले हमको डेटा लाना था एक्सेल से, तो एक्सेल पे क्लिक किया था। ठीक है, अभी हमको एक्सेल कहाँ से लाना, सीक्वल सिक्वल, एक्सेल में तो हाँ। हाँ, सिक्वल पे कर रहे हैं। अभी सीक्वल में लाया ना। हाँ, अब यहाँ पे सर्वर नेम पूछा, क्योंकि सिक्वल का एक सर्वर नेम होता है। हम्म, ठीक है, सर्वर हम्म, नेम कैसे देखेंगे, आप हम्म, कोई भी कहीं भी चले, ये सर्वर नाम है, तो आप राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ। ठीक है, और यहाँ पे सर्वर नाम ये है। ठीक है, और इसको कॉपी कर लो आप, हम्म। और यहाँ ला के आप पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस नाम, तो आप ऑप्शनल है, आप डेटाबेस नाम भी दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, या सीधे डेटाबेस का नाम आपका मान लो कि ये है, टेस्ट है। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, डेटाबेस का नाम टेस्ट। ओके, और इसको आप क्या कर दो, ओके सर। इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब ये दो मोड होता है, आई विल डिफरेंस बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हाँ तो तो इससे इंपोर्ट मतलब ओके डेटा हम पूरा लोड कर रहे हैं। ओके ठीक है, ओके, क्लिक एन ओके। ओके सर। ठीक है, और इस टेस्ट डेटाबेस में ये सारे टेबल्स है। ठीक है, तो आपको कौन सा टेबल, दिवाली सेल्स का लेना है, राइट। तो देर इज ए दिवाली सेल्स, दिवाली सेल्स, हाँ दिस वन, राइट, इसको आप क्लिक करोगे। ठीक है,
और यहाँ पे, यहाँ पे क्या करो, ट्रांसफॉर्म पे जाओगे, ठीक है। सो देखो, इससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं पावर बीआई में। ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है रिपोर्ट क्रिएट करने में। पहले हम डेटा को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। मतलब डेटा को पहले कनेक्ट करते हैं, फिर डेटा को प्रिपेयर, प्रिपेयर मतलब डेटा रॉ डेटा होता है, जैसे मैंने बताया डेफिनेशन में ना। ओके। तो जो सोर्स लेते हैं वो डेटा क्या रॉ होता है, उसको क्लीन करना पड़ता है। क्लीन इन द सेंस, उसमें बहुत सारे, मान लो एक टेबल है आपको, हंड्रेड्स ऑफ कॉलम है, आपको सिर्फ कॉलम कितनी जरूरत है, 20 ही कॉलम की जरूरत है, तो आप बाकी कॉलम को डिलीट कर दोगे। बहुत सारे रोज है जिसको डिलीट कर, बहुत सारा नल वैल्यू है, आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा ना। कॉलम का नाम डिफरेंट है, आपको दूसरा नाम देना पड़ेगा, ठीक है। 2-3 टेबल है, उसको एक में मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो एक कॉलम है जिसमें आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों है, तो आपको दोनों अलग अलग कॉलम में चाहिए, फर्स्ट नेम एक कॉलम में, लास्ट नेम एक कॉलम में, ठीक है। इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो उसको क्लीन कहते हैं, डेटा डेटा को ट्रांसफॉर्म करना कहते हैं, मतलब डेटा को क्लीन करना। पहले रिपोर्ट बनाने से पहले डेटा को क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डेटा को डेटा मॉडलिंग करते हैं। डेटा मॉडलिंग जब हम डील करते हैं ना, जब हम रिपोर्ट हाँ बनाते सर। हैं तो एक साथ मल्टीपल टेबल से डील करते हैं। कभी भी रिपोर्ट एक सिंगल टेबल से नहीं बनता, मल्टीपल टेबल से बनता है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो मल्टीपल टेबल से बनता है, तो मल्टीपल टेबल को आपस में रिलेट करना पड़ता है, मतलब कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है। एक टेबल है मान लो कस्टमर, दूसरा टेबल सेल्स, तो कस्टमर टेबल सेल्स टेबल से कनेक्टेड होगा तभी हम रिपोर्ट बना सकते हैं। तो उसको बोलते हैं हम डेटा मॉडलिंग, ठीक है। अभी हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे आपको कैसे क्या होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं डेटा मॉडलिंग। उसके बाद हम कुछ लॉजिक लिखते हैं, जैसे मान लो कि हमें टोटल सेल्स चाहिए, तो हमको उसके लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा ना, टोटल सेल्स कैसे निकालेंगे। या हमको सेल्स चाहिए सिर्फ यूएसए से रिलेटेड, या सेल्स है 2019 का बस, राइट। या हमको इस साल का, इस साल का जो सेल्स है वो कितना ग्रो हुआ पिछले साल के कंपैरिजन में, तो उसके लिए आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा। या मान लो कि हमको सेल्स है सिर्फ वीकेंड के सेल्स है, वीकेंड मीन सैटरडे संडे के सेल्स चाहिए, बाकी सेल्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो सबका लॉजिक लिखना पड़ेगा। या ईयर वाइज आपको मतलब सेल्स चाहिए, ठीक है। तो उस तरह की चीज है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा। जैसे आप एक्सेल में फंक्शन लिखते हो ना, ठीक है, फंक्शन लगाते हो ना एक्सेल में, सम लगाते हो इस हाँ तरह के, सर। इसी तरह के इसमें फंक्शन होता है, उसको डैक्स बोलते हैं, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन बोलते हैं उसको, इसमें डैक्स फंक्शन यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह का, उसके बाद जब आप मेजर्स क्रिएट कर लेते हो, मतलब लॉजिक क्रिएट कर लेते हो ना, उसको यूज करके आप विजुलाइज करते हो, मतलब ग्राफ एंड चार्ट में उसको रखते हो, और उससे आप ग्राफ एंड चार्ट बनाते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है 3, ठीक है। तो मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, डेटा को लोड कर लिया बेसिकली, ठीक है। क्या किया हमने, डेटा को लोड कर लिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, हाँ इसमें ठीक है सर। इसको बोलते हैं क्वारी एडिटर। जहां पे हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे ना, उसको बोलते हैं क्वारी एडिटर, ठीक है। यहाँ क्वारी एडिटर, ओके। हाँ, ठीक है। इसका एक मेन विंडो होता है पावर बीआई का, जैसे ये मेन विंडो है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड जो बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड एक क्वेरी एडिटर, मतलब जहां का हम डाटा ट्रांसफॉर्म करते हैं। दिस इज कॉल्ड ईटीएल टूल ऑफ पावर बीआई। ईटीएल आपने नाम सुना है कभी, ईटीएल? नहीं। सर। हेलो सर। हाँ जी बताएं। बोलिए सर। ईटीएल सुना नाम, ईटीएल, ईटीएल, ईटीएल हाँ सर। इफ, हाँ। क्या होता है ईटीएल, रीटीएल। क्या होता है ईटीएल? री रीटीएल है। हाँ हाँ ईटीएल, राइट। इससे क्या, क्या होता है? मतलब वो फ्रेज का नाम है ना सर? नहीं नहीं, रिटेल। नहीं नहीं, ठीक। ईटीएल एक प्रोसेस है, ओके सर। स्किल डोंट। सेट है। एक्सट्रैक्शन, ईटीएल मतलब एक्सट्रैक्शन, हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन, हम्म। अगर मैं करूं, ईटीएल मींस एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग, ठीक है। मतलब इस, जो हम प्रोसेस यहाँ कर रहे हैं ना, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, ईटीएल प्रोसेस बोलते हैं। मतलब डेटा को हमने ओके। एक्सट्रैक्ट किया सोर्स से,
एक्सट्रैक्शन मतलब डेटा को हमने लोड किया, सोर्स से क्या किया, पावर बीआई में लोड किया ना, पहला प्रोसेस। दूसरा हम ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब इसमें चेंज करेंगे कुछ। और तीसरी चीज का लोडिंग, इसको हम पावर बीआई में विजुअलाइजेशन के लिए लोड करेंगे। तो 3 प्रोसेस होता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लो कि देखो, आपने ए किया, देखो अभी ये प्रोसेस हम कौन सा करना है पहला प्रोसेस कौन सा, डेटा प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन में हम क्या बताया, डेटा को हम क्लीन करते हैं, ठीक है। कुछ गलती हो, रफ डेटा हो, कुछ डिलीट करना हो, कुछ नाम चेंज हो, वो करते हैं, ठीक है। जैसे देख लो आप, पीपल ए टेबल है, ठीक है, पीपल। अब इसमें हेडर जो है ना वो सही नहीं है, दिख रहा है आपको। हाँ सर, हेडर क्या क्लियर होना है। चाहिए, पर्सन होना चाहिए और रीजन होना चाहिए, ठीक है। एक कॉलम हम्म। 1 कॉलम 2 डिफॉल्ट आया, तो कैसे सही करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इसमें, यूज हम्म। फर्स्ट रो एज हेडर। आप करोगे सीधे हो सही हो जाएगा, पर्सन और रीजन। ओके सर। ओके, हम्म। ठीक है। आप मान लो कि इसका आपका नाम पीपल नहीं पर्सन, मतलब आपको चेंज करना, तो आप डबल क्लिक करो यहाँ पे, हम्म। ठीक है। हम्म। या आप यहाँ कर लो, या यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे नाम आप चेंज करो, पीपल की जगह पे आप पर्सन कर लो, ठीक है। ठीक है, तो नाउ इट इज शोइंग पर्सन, ठीक है। अब इस पर्सन का नाम नेम कर लो, नेम। ओके, ये कर सकते हो। अब मान लो ए ऑर्डर, आप इसमें एटलीस्ट 50 कॉलम्स है, मोर देन 50 कॉलम। आपको सारे कॉलम्स की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 2 ही कॉलम की जरूरत है, 3 कॉलम की। जस्ट हम सेलेक्ट करेंगे किसके थ्रू, कंट्रोल करके 3 कॉलम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम जाएंगे, रिमूव कॉलम में जाएंगे, रिमूव अदर कॉलम, सारे अदर्स कॉलम डिलीट हो जाएंगे। गॉट इट, हाँ, गॉट इट। ठीक है। तो और ठीक है जो भी स्टेप हम अप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे आपको देखोगे कि यहाँ पे ये नोट डाउन होता है, इसको बोलते हैं अप्लाइड स्टेप। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हो, कोई भी क्लीनिंग करते हो, वो प्रोसेस का नाम, स्टेप का नाम यहाँ नोट डाउन हो जाता है, राइट, ठीक है। हाँ सर। ठीक है सर। और अगर मान लो कि स्टेप करने में गलती हो गई, तो आप प्रीवियस स्टेप पे जा सकते हो, यहाँ पर जस्ट क्लिक कर दो, ठीक है, आप प्रीवियस स्टेप पे चले जाओगे, ठीक है। हम्म। वैसे ही आप मान लो कि आपको सिर्फ टॉप मोस्ट सिर्फ 10 ही रो को आपको टॉप 10 रोज को चाहिए, तो आप यहाँ पर कीप टॉप ऐसे करोगे। आपको 5 रोज चाहिए तो 5 रोज कर दोगे, और ये सिर्फ 5 रोज है, बाकी रोज डिलीट हो जाएंगे, ओके सर। ठीक है? इसमें डेटा टाइप का इशू होता है, डेटा टाइप को भी चेंज करना होता, ठीक है। अगर डेटा टाइप आपका सही नहीं है, सो ओके सर। डेटा टाइप को चेंज करना पड़ता है। अभी सही है सब डेटा टाइप, राइट। हाँ, जैसे कस्टमर नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों सेम है, तो हमको रिक्वायरमेंट है कि फर्स्ट नेम एक कॉलम में चाहिए, लास्ट नेम एक कॉलम। तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, कॉलम को, इसको हम स्प्लिट कर देंगे, ठीक है, स्पेस से। तो ये अलग अलग कॉलम में चले जाएंगे, देखो आप, एक कॉलम एक बन गया और एक एक कॉलम बन गया दूसरा, ठीक है। फर्स्ट नेम इसमें आ गया, अब इसको आप फर्स्ट नेम कर दो, इसको लास्ट नेम कर दो, ओके। सो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे दिवाली ओके सेल्स सर। आपने किया, आपने तो हम्म। इसमें, इसमें भी आप चेंज कर सकते हो हम्म। नाम। जैसे स्टेट है, तो आप इसको प्रोविंस कर दो, हम्म। ठीक है। अब इस डेटा को आपको मान लो कि ओके, अमाउंट मत सेल्स, इसको आप सेल्स कर लो, ठीक है, या रेवेन्यू कर लो, सेल्स ही सेल्स कर लो, राइट।
मतलब ये सब चेंजेस, जैसे इसमें स्टेटस, आई मीन ये नल वैल्यू, आप इसको डिलीट कर सकते हो इस कॉलम को सीधे। ठीक है, कैसे रिमूव हम्म द कॉलम, रिमूव कॉलम, ये भी है अननेम्ड, इसको भी रिमूव। मतलब जो अनवांटेड डेटा आपको उसको हटा देना है। हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो अनवांटेड हम्म डेटा है ना, उसको हटाना है। ओके लो, ओके सर। विजुलाइज बनाने का मतलब रिपोर्ट बनाने से पहले। अब हम्म ये चीज हो गया। हम्म अब देखो इसमें एक चीज और कर सकते हो आप, कि आपको सिर्फ हम्म, मान लो कि ऐसा चाहिए कि जो सेल्स हुआ है ना, आपको हाँ सर। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन वाइज से, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज आपको सेल्स चाहिए। मतलब किस कैटेगरी में कितना सेल हुआ। मतलब यहाँ एक ऐसा लिख के आ जाए कि आपको एक कॉलम में लिखा है फूड कैटेगरी, मतलब रिपीटेड ना हो, और प्रोडक्ट कैटेगरी, और दूसरे कॉलम में टोटल सेल्स लिखा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ग्रुप बाय होता है, ठीक है। तो आप ग्रुप बाय कर सकते हो, यहाँ पे टोटल सेल्स लिख दो। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ अभी। अभी डिटेल में सब बताऊंगा मैं, एक एक करके आपको सब चीज। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये पूरा टेबल ना दो चीजों में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट आपको प्रोडक्ट आ जाएंगे, ठीक है, कैटेगरी आ जाएंगे, और उस कैटेगरी रिलेटेड कितने सेल्स हुए हैं ना, वो आ जाएगा। कई बार आपको इतना ही जरूरत पड़ती है। ओके, या आपको जोन वाइज आपको सेल्स चाहिए, जैसे मान लो कि ज्यादातर लोगों को कभी कभी जोन वाइज क्या चाहिए, प्रोविंस वाइज चाहिए या जोन वाइज चाहिए, तो जोन वाइज भी सेल्स कर सकते हो आप। मतलब इस जोन में इतना सेल्स हुआ, इस जोन में इतना, राइट, इस तरीके का। गॉट इट। हाँ सर। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, ये चीज आपका क्लीन हो गया डेटा। आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा क्लोज एंड अप्लाई। हम्म ठीक है, हम्म तो आप क्लोज एंड अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये देखो, ये डेटा आपको कहाँ लोड होएगा, पावर में। देखो अभी डेटा ना, डेटा नहीं है, देखो डेटा यहाँ पर रहेगा। देखो ये डेटा, ये मेन पावर भी है, ठीक है, जहाँ पे आप ग्राफ एंड चार्ट बनाओगे। ठीक है, यहाँ आप ग्राफ एंड चार्ट बनाओगे। ठीक है, यहाँ पर डेटा लोड होगा। अभी डेटा देखो कुछ नहीं है। जैसे हम यहाँ डेटा लोड करेंगे किससे, जहाँ पर डेटा क्लीन किए, यहाँ से हम क्या करेंगे, डेटा को लोड करें, क्लोज एंड अप्लाई। ठीक है, अभी देखो डेटा लोड हो गया। ठीक है, हो गया ओके सर। इधर। ठीक है, तो अब इसको बोलते हैं डेटा सेट। मतलब इस डेटा से हम अभी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्या दूसरा प्रोसेस बताया था मैंने, उसका डेटा मॉडलिंग करना होता। डेटा मॉडलिंग मतलब आपको जो टेबल से उसको कनेक्ट करना पड़ता आपस में। जैसे जो टेबल है, जो रिलेटेड टेबल है, जैसे मान लो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया बेसिकली। ठीक है, अगर आप इसको डिलीट कर दो, कैसे कनेक्ट करते हो मैं बताता हूँ। ठीक है, ये दो टेबल है, ऑर्डर टेबल और पर्सन। ठीक है, इन दोनों टेबल को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो टेबल को कनेक्ट, ये क्या, किस चीज का प्रोसेस है, डेटा मॉडलिंग का प्रोसेस है। ठीक है, तो डेटा मॉडलिंग क्या करते हैं, उसमें दो जो टेबल है उसको कनेक्ट करते हैं। अच्छा, दो टेबल को कनेक्ट करना होगा तो कुछ कॉमनैलिटी चाहिए। जैसे जो फैमिली में रिलेशनशिप है, इसका मतलब देर इज सम कॉमनैलिटी, कुछ कॉमन चीजें हैं दोनों फैमिली में। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। हाँ हाँ सर। दो, दो टेबल मतलब दो, कोई भी चीज दो, दो फैमिली में कोड रिलेशनशिप। टेबल में एक कॉलम हाँ, सेम हाँ चाहिए। कॉमन कॉलम है ये, राइट राइट, यही कॉमन मैं कह, कॉलम चाहिए। हाँ राइट राइट राइट, यही मैं हम्म कह रहा था। जैसे हम्म यहाँ रीजन है आपका, हम्म यहाँ भी रीजन होगा। हम्म ठीक है, हम्म ये देखो ये रीजन है। ठीक है, एक मिनट, ये रीजन। ठीक है, तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट कैसे करना है? आपको पावर बीआई में स्पेशली इस कॉलम को उठाना है, ठीक है, हम्म ड्रैग करना है,
एक टेबल से दूसरे टेबल हम्म, के सेम कॉलम पर आपको ड्रॉप कर देना है लाके। ओके सर। ठीक है, तो एक कनेक्शन बन गया हम्म, आपका। ठीक है, अब हाँ, आप इस पे होवर करोगे ना, ये चीज करोगे, देखो ये पता चलेगा किसके किसके बीच रिलेशनशिप है। ठीक है, हम्म, तो इसमें डेटा मॉडलिंग थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होता है, इसमें दो तीन तरह का कॉन्सेप्ट होता है कि ये बोलते हैं वन टू मेनी रिलेशन, इसको पर्सन को बोलते हो डायमेंशन टेबल। ठीक है, इसको हम्म, बोलते हैं हम फैक्ट टेबल। तो जो भी चीज होता है ना डेटाबेस हम्म, में, रिलेशनल डेटाबेस में, वो सारे टेबल ना स्कीमा में दो तरह के टेबल में डिवाइड होते हैं। कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ डायमेंशंस होते हैं। तो फैक्ट टेबल मतलब जहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड डेटा, जैसे मान लो प्रॉफिट है, सेल्स है, डिस्काउंट है, ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल डेटा स्टोर होते हैं, उसको फैक्ट बोलते हैं, मेन टेबल। डायमेंशन क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब जैसे कस्टमर रिलेटेड डेटा है, उसका लोकेशन रिलेटेड डेटा है, प्रोडक्ट रिलेटेड डेटा, प्रोडक्ट कैटेगरी का डेटा है, कैलेंडर का डेटा है, उस तरह के टेबल को क्या बोलते हैं हम? डायमेंशन टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो जो हम्म, इसमें वन टू मेनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप होता है, चार तरह के, फोर टाइप्स के रिलेशंस होते हैं, कि वन टू मेनी होते हैं, मेनी टू वन होते हैं, वन टू वन रिलेशनशिप होते हैं, मेन टू मेनी। यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वन टू मेनी रिलेशनशिप, वन इधर है, स्टार मतलब मेनी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ठीक है, उसको ये कॉन्सेप्ट होता है। ये फिल्टर होता है कि डायमेंशन, ये फिल्टर का डायरेक्शन है, मतलब ये पर्सन जो टेबल है डायमेंशन, वो फैक्ट टेबल को फिल्टर करता है, अपोजिट नहीं सही है। ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको, ये डाटा मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप बन गया आपका। ठीक है, तो इसको मतलब एक एक ही दो ही टेबल बना के दिया, बाकी आप जब करोगे ना तो ह्यूज टेबल, जैसे मान लो कि ये प्रोजेक्ट मैंने किया है, ठीक है, ये वाला, तो आप देखोगे ना इसमें बहुत सारे टेबल है। ठीक है, ठीक है, इसमें बहुत सारे टेबल है। ठीक है, तो आपको कम्प्लेक्स भी मतलब ये बताया जाएगा, क्योंकि कब के 50 कॉल मतलब जब कम्प्लेक्स करो थोड़ा ज्यादा टेबल होते हैं। ठीक है, उसमें और ये स्कीमा कई तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब इसमें स्कीमा होता है, आप कहीं में भी सुने होंगे, स्टार स्कीमा होता है, फिर स्नोफ्लेक स्कीमा होता है। ठीक है, ये टाइप ऑफ स्कीमाज होते हैं, ये डेटा मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट में आते हैं। ठीक है, हम्म, देखो ये सामने दिख भी रहा, ठीक है, वन मिनट टू वन हम्म, रिलेशनशिप है, पर्सन और रीजन टेबल पर्सन में। ठीक, ठीक है, सिंगल, सिंगल। हाँ, क्रॉस फेल्टिंग, आप सिंगल डायरेक्शन मतलब सिर्फ पर्सन से ऑर्डर की तरफ जा रहा है। हम्म, तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, हम्म, अब उसके बाद क्या होता है कि आपको लॉजिक लिखना होता है। ठीक है, हम्म, लॉजिक लिखना होता है, जैसे मान लो कि लॉजिक क्या मतलब कि टाइमर। ओके, ठीक है, ये ऑर्डर टेबल, राइट, ये ऑर्डर डेट है। अब मान लो सिचुएशन ऐसा है जहां पे आपको सिर्फ ईयर चाहिए और डेट से मतलब नहीं है। आपको जो डेटा एनालिसिस करना है आपको ईयर वाइज, मतलब ईयर वाइज आपका, मान लो पूछे कि हमें ट्रेंड दिखाना ईयर वाइज, सेल्स कैसा रहा है या ईयर वाइज प्रॉफिट कैसा रहा, तो आपको ईयर चाहिए ना। ठीक, तो आपको मान लो इससे ऑर्डर डेट है, उस ईयर कॉलम बनाना, तो उसके लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा। मतलब ऑर्डर डेट से आपको ईयर निकालना है, तो उसके लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो जो डैक्स लिखते हैं ना इसमें, जो हम एक्सेल में फंक्शन यूज करते हैं, वैसे डैक्स होता है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए देखो, आप यहाँ पे क्लिक किए हो तो यहाँ पे न्यू कॉलम करके दिख रहा है। ठीक है, तो आपको नया कॉलम बनाना है, किसका? ईयर का। तो आप न्यू कॉलम पे क्लिक करोगे। ठीक है, इन नया कॉलम देखो अपने आप बन के आ गया। तो डैक्स लिखने का क्या तरीका होता है, बेसिक क्या होता है मैं बता रहा हूँ। पहले आपको क्या होता है, डैक्स लिखने में पहले नाम लिखना होता है, उस डैक्स का नाम या कॉलम का नाम लिखना होता। तो आपको ईयर कॉलम बनाना है तो कोई भी रिलेवेंट नाम देते हो, अपने हिसाब से आप दे सकते हो कुछ भी।
जैसे ईयर कॉलम बनाना है तो सबसे बेहतर नाम क्या होगा, ईयर। ओके, ईयर कॉलम। ओके, उसके बाद इक्वल टू देना है। उसके बाद कोई आपको फंक्शन लिखना जिससे ईयर मिल जाए। जैसे इसमें ईयर एक फंक्शन होता है, डेक्स फंक्शन। एफ एक्स इसका मतलब फंक्शन, ठीक है। एक ईयर क्या करता है, जो भी डेट होगा ना उससे ईयर वाला पार्ट निकाल लेता है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जो ईयर सर। ईयर फंक्शन होगा, हम्म जैसे आपने उसमें भी यूज किया होगा, आई मीन सिक्वल में, वो भी उसमें भी ऐसा ही रहता है, डेट पार्ट होता है, कुछ हम्म ईयर निकालना, मंथ निकालना, ठीक है, वो चीज है। हम्म तो वैसे ही, और यहाँ पे क्या इनपुट देना, डेट। अंदर कौन सा इनपुट, डेट कॉलम देना, जहां से आपको ईयर निकालना है, ठीक है। जहां से ईयर निकालना है तो आप क्या करो, ऑर्डर डेट, किससे निकालना है आपको, ऑर्डर डेट से। ऑर्डर ठीक। तो हाँ, तो ऑर्डर डेट देखो, ये कभी भी ना उसके साथ आएगा, टेबल के नाम के साथ। देखो इसमें जो जो सिंगल कोट में है ना, सिंगल कोट में ये टेबल का नाम हम्म। है, ठीक है। और जो ओके सर। स्क्वायर ब्रैकेट में वो क्या चीज है, टेबल का नाम, कॉलम का नाम है। टेबल कॉलम का नाम। कॉलम का नाम, जो स्क्वायर ब्रैकेट में वो हम्म। टेबल कॉलम का नाम है। और जो सिंगल कोट में है क्या है, वो टेबल का और नाम है। टेबल का नाम। हाँ, इसमें इक्वल टू करो, मतलब क्लोज ब्रेसेस को क्लोज करना, एंटर कर देना। देखो आप ईयर आ गया, पार्ट जिस जो जो ईयर होगा वो आ जाएगा, ठीक है। मतलब हम्म। 2000 आप देखोगे इधर ना, तो 2018 से रिलेटेड ईयर है, ठीक है सर। हाँ। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो, पहला जो ईयर है, ठीक है, यहाँ पे इसी से तो डेट निकाला आपने, 18 है, हम्म 19 है, देखो हम्म। 17 है, ठीक है। टू तो आप देख, थाउजेंड एटीन नाइनटीन। हाँ हाँ ठीक है। तो उससे वैसे ही आप अगर मान लो कि मंथ नेम आपको करना है, ठीक है, तो कई बार मंथ नेम से ही आपको करना होता है, इस मंथ में कितना सेल हुआ। उसके लिए भी आप क्या करो, न्यू कॉलम करोगे, हम्म। ठीक है। तो मंथ मंथ नेम, नेम मतलब वो नाम, आप नाम नहीं। कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो कैसे निकालना होगा, हम्म। एक फॉर्मेट फंक्शन होता है। और टेबल का नेम। फॉर्मेट। हाँ। फॉर्मेट फंक्शन होता है, वैल्यू में मतलब आप किस हम्म चीज को फॉर्मेट करना चाहते हो, जैसे ऑर्डर डेट को करना चाहते हो, राइट। मतलब डेट ही आपको देना है, हम्म कोई भी हम्म डेट कॉलम देना है, उसी को तो आप फॉर्मेट करोगे, हम्म। ऑर्डर डेट, कॉमा। देखो इसकी इतना इजी है, आपको बता देगा क्या आपको इनपुट देना है। यहाँ पे देखो वैल्यू, मतलब किस चीज को फॉर्मेट करना है। वैल्यू दूसरा फॉर्मेट। चीज है फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में चाहिए। तो आपको अगर हाँ। मान लो इसमें स्पेसिफिक चीज होता है, आपको मंथ नेम चाहिए तो 4 टाइप M देना होता है, ठीक है। हम्म तो वो मंथ नेम में चेंज हो जाएगा। ओके, आपको शॉर्ट हम्म मंथ देना है तो 3M देना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। शॉर्ट नेम मिल जाएगा। आपको ईयर भी कर सकते हो, इससे ईयर लेना है तो 4 टाइम Y कर दो। 4 times Y। हाँ, ठीक है। आपको डे नेम करना है, 4 टाइम डे कर दो, D कर दो। मतलब सारा चीज इससे कर हम्म सकते हो फॉर्मेट से, ठीक है। हम्म आपको ईयर, मंथ और ईयर करना है तो सीधे आप कर दो, 3 टाइम M, शॉर्ट नेम आ जाएगा, और Y कर दो, ठीक है। इस तरह की चीज आ जाएगा। हम्म। ओके, ओके सर। तो ये चीज हो गया, ठीक। इसको बेसिकली डैक्स का यूज करके हम ना तीन चीजें करते हैं। हम्म एक तो कॉलम बनाते हैं, एक कॉलम हमने बनाया, ठीक है। दूसरा चीज हम हम्म टेबल भी बना सकते हैं। हम्म। क्या बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं हम। टेबल जैसे बन सकता हाँ, टेबल क्या मतलब, जैसे मान लो कि हम हमें यहाँ पे है। आह, एक टेबल चाहिए जिसमें सिर्फ क्या हो, सिगमेंट। ये सिगमेंट है, कितने सिगमेंट है, हम्म। 3 से, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, होम। सिगमेंट कॉर्पोरेट वाइज होम। प्रॉफिट कितना है, क्या हमको हम्म चाहिए, सिगमेंट वाइज प्रॉफिट। हम्म तो सिगमेंट वाइज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सिर्फ यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। देखो आप मेजर्स क्रिएट कर सकते हो, कॉलम क्रिएट कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो, ये हम्म चीजें। क्विक मेजर और मेजर, न्यू मेजर सेम होता है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है। हम्म तो आप मेजर्स क्रिएट कर सकते हो। अभी मैंने कॉलम बताया, न्यू कॉलम कैसे करता, अब न्यू टेबल बता रहा हूँ, ठीक है। न्यू टेबल पर क्लिक करना है, हम्म ठीक है। यहाँ पे आपको उसके लिए जो हम बता रहे हैं, उसके लिए आपको ग्रुप बाय यूज करना पड़ेगा। बेसिकली एक फंक्शन होता है ग्रुप बाय, आप नाम सुने होंगे, ठीक है। हाँ यहाँ ग्रुप बाय।
हाँ, ग्रुप बाय या समराइज, ठीक है। तो यहाँ समराइज एक फंक्शन यूज करोगे आप। हम्म। और पहला चीज क्या है, इसको क्या देना इनपुट, टेबल। कौन सा टेबल है हम यूज टेबल। करें, ऑर्डर टेबल। कौन ओके। सा टेबल, ऑर्डर टेबल। कॉमा, टेबल। ग्रुप बाय कॉलम, ग्रुप किसके बाय हिसाब से आप ग्रुप कॉलम। बाय करना चाहते हो। आप किसके हिसाब से, सेगमेंट के हिसाब से ग्रुप बाय करना, किसके हिसाब से, सेगमेंट के हिसाब सेगमेंट। से। ठीक है, उसके बाद आपको एक नया जो कॉलम है टोटल प्रॉफिट वाला, सेगमेंट वाइज उसका नाम देना। तो हम नाम क्या देंगे, ये सब डिटेल में हम आपको बताएंगे। ठीक है, टोटल प्रॉफिट, टोटल। प्रॉफिट। उसके बाद आपको एक्सप्रेशन, मतलब वो टोटल प्रॉफिट लेने के लिए क्या करना होगा, सम करना पड़ता है हमको, किसको, प्रॉफिट को, तभी सम। टोटल प्रॉफिट मिलेगा। देखो आगे, उस पूरे टेबल से, इस बड़ा टेबल है जो, ठीक है, ये पूरा बड़ा टेबल है, उससे हमको सिर्फ इतना ही जरूरत था, सेगमेंट। इतना ही रिक्वायरमेंट था, सेगमेंट वाइज सेल्स टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो वो आ गया हमको, उतने बड़े टेबल से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह का हम टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। ओके। अब तीसरी चीज होती है इसमें कि हम, मतलब इसमें वो फार्मूला भी यूज करना पड़ता सर? हाँ, थोड़ा बहुत फार्मूला यूज है, लॉजिक डब, फॉर्मूला नहीं ओके है सर। वो, देखो इजी होता है, आप कोई भी फॉर्मूला करो वो हम बताता है क्या आपको देना है और क्या आउटपुट आएगा। तो आपको इसमें रिमेंबर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। ओके सर। हाँ, इसमें रिमेंबर करने की जरूरत नहीं, इसीलिए बहुत फेमस टूल है कि कोई भी सीख लेता है। ठीक है, कोई नॉन टेक्निकल कोई बंदा सीख लेता है। ठीक है, हमने ट्रेन किया बहुत लोग, बहुत लोग मतलब नॉन, बेसिकली नॉन टेक्निकल बंदे ही सीखते हैं, इजी होता है। अगर आपको जॉब में एंट्री मारनी आईटी में, तो ये बहुत इजी है टूल, इसी के थ्रू आप कर सकते हो। बाकी कोई कोर्स सीखोगे बहुत टाइम लगता है। ठीक है, उसमें बहुत ओके सर। कोडिंग इन्वॉल्व होती है। ठीक है। अब तीसरी चीज क्या होती है इसमें, जैसे मेजर्स लिखना। ठीक है, मेजर्स क्या होता है ना, अभी लिखते हैं, जैसे टोटल सेल्स आपको निकालना है जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे सिंगल आउटपुट चाहिए, जैसे टोटल सेल्स निकालना आपको। ठीक है, इक्वल टू, टोटल सेल्स कैसे निकालोगे, सम कर दोगे जो सेल्स वाला कॉलम है। देखो इसमें एक सेल्स का कॉलम होगा। ठीक है, देखो ये सेल्स का कॉलम, हमको टोटल सेल्स निकालना, तो सम करो किसका, सेल्स का, सेल्स कॉलम, ऑर्डर टेबल का सेल्स कॉलम। राइट, उसको क्या कर सेल्स दो, का। सम करो। अब देखो, इससे रिलेटेड कोई कॉलम नहीं आएगा आपको। ठीक है, एक कॉलम आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं, मेजर्स बोलते हैं इसको, जो आपको कॉलम में नहीं दिखेगा। मैसेज। आपको इसको देखना हो, जैसे टोटल सेल्स, क्या हमने लिखा, टोटल सेल्स ना। ठीक है, ये चीज है। अब इसके पहले देखो कैलकुलेटर का साइन, ये कहीं भी दिखेगा नहीं आपको, यहाँ पे टेबल में कहीं नहीं दिखेगा। इसको बोलते हैं मेजर्स। इसको देखना हो तो आपको कहाँ देखना पड़ेगा, जो थर्ड पार्ट है, मैंने दो पार्ट बताया इसको आपको। थर्ड पार्ट है क्या चीज, डेटा विजुलाइजेशन। आपको इसमें ग्राफ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं विजुलाइजेशन। डिफरेंट टाइप के ग्राफ है, देखो, बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, एक ग्लो मैप है, इसको वाटरफॉल, मतलब डिफरेंट, जहां पे ले जाओगे ना वो बता देगा किस टाइप का ग्राफ है। ठीक है, तो आप जैसे कार्ड ओके। विजुअल, कार्ड विजुअल मतलब आपको सिंगल आउटपुट चाहिए, कोई चीज इंपॉर्टेंट चीज को आपको शो करना है, टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट, ग्रोथ क्या है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, कार्ड विजुअल। जैसे कार्ड हमने कर दिया, और इसमें क्या करेंगे, जो चीज था हमारा टोटल सेल्स, ठीक है, वो चीज हम पुट कर, देखो यहाँ पे हम क्लिक किए तो यहाँ पे देखो टोटल फील्ड वाला है, फील्ड, तो फील्ड में हम क्या रख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे टोटल से, तो ये डिस्प्ले कर देगा। हेलो, हाँ सर। गॉट इट। ठीक है, अब इसको फॉर्मेट भी करते हैं, देखो। हाँ। हाँ सर। हाँ, एक इसको फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, देखो, इसको मतलब थोड़ा खूबसूरत दिखना है, आई मीन इट शुड सो अट्रैक्टिव, राइट, कस्टमर देखे तो अट्रैक्टिव दिखे। तो आपको इसको क्लिक करना है, यहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन देखो, राइट क्लिक में फॉर्मेट योर विजुअल। ठीक है, इससे पहले आप यहाँ फॉर्मेट करोगे, आप प्रॉपर्टीज में जाके इसका लेंथ ब्रीथ ये सब सही कर सकते हो।
तब ये आप ऐसे भी कर सकते हो और वहां भी जाकर कर सकते हो, यहाँ पर भी, ठीक है। ये हाइट विथ देखो, आप इसको करोगे ना इधर उधर तो देखो चेंज होगा, ठीक है, चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब वैसे पोजीशन है तो ठीक है। पोजीशन पोजीशन भी आप मतलब पोजीशन इन द सेंस लाइक दैट, देखो अब चेंज हो रहा, ठीक है, ऐसे। तो आप जहाँ पोजीशन करना चाहते हो वो चीज़ कर सकते हो यहाँ से। तो ये सब चीज़ें, मेन चीज़ है टाइटल। टाइटल लिखना है, टाइटल इन द सेंस ऊपर आता है। ये टाइटल क्या हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, टोटल सेल्स का क्या होगा, टोटल सेल्स, ठीक है। अब टाइटल की प्रॉपर्टीज आप सेट कर लो कि इसका कैसा होना चाहिए, मतलब ये आप किस टाइप के हेडर 2 3 4 जो भी है, ठीक है। और इसमें कल इसका फ़ॉन्ट्स बढ़ा लो, ठीक है। इसका टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हो जैसा भी चाहिए आपको, ठीक है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से आप चेंज कर लो बैकग्राउंड कलर, इसमें सेंटर में ला सकते हो इस तरीके का, सब टाइटल कर सकते हो, स्पेसिंग कर सकते हो। अब इसकी कलरिंग करनी है, जो लिखा हुआ वैल्यू उसको इफेक्ट में जाओगे, ठीक है, उसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हो आप, ठीक है। कुछ भी मान लो, ये बैकग्राउंड कलर दिया हमने, ठीक है। अब इसमें जीरो है, इसको डल भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, डल कर सकते हो। इसको विजुअल बॉर्डर कर सकते हो, शेडोइंग कर सकते हो, ये सब चीजें कर सकते हो आप अपने हिसाब से, देखो अभी खूबसूरत दिखने लग गया, ठीक है, इस तरह की चीजें, ठीक है। और भी जैसे इसको मतलब इंपॉर्टेंस का एक फिल्टर होता है, एक स्लाइसर, एक होता है स्लाइसर, ठीक है। इसमें क्या, मान लो कि टोटल सेल्स है, हमें देखना है सिर्फ पार्टिकुलर ईयर का सेल्स, दो देखना है हमको एक पार्टिकुलर ईयर का, तो हम क्या करेंगे, स्लाइसर, इसमें हम क्या करेंगे, जिस ईयर जो हमने कॉलम क्रिएट किया ना, ईयर, इसको हम रख हाँ सर। देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जाके इसको भी फॉर्मेट कर देंगे हम, ठीक है। इसको हम रख देंगे टाइल्स फॉर्मेट पर, ठीक है, जो आपको डिफरेंट जो ईयर है ना वो दे देगा, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो जो भी है आप मतलब इसका एडजस्टमेंट भी करना होता है, जब आप प्रोजेक्ट करोगे ना तो अच्छे से करना होता है, ठीक है, ठीक है। तो आप देखो, अब जैसे सेलेक्ट करोगे ना उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, 2018 का सेल्स दिखाएगा, यहाँ क्लिक करो 2017 का सेल्स दिखाएगा, हाँ सर। टू समझ थाउजेंड में आया। नाइनटीन का। हाँ, हाँ सर। उस तरीके का। हम्म। जैसे मान लो अभी एक और ग्राफ बना दो आप, पाई चार्ट, हम्म। ठीक है। आप इसमें दिखा दो, आप सेल्स ही दिखा दो, आप टोटल सेल्स कैटेगरी, राइट, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज सेल्स दिखाएगा, ओके। तो हम जब भी सेल करेंगे, क्लिक करेंगे, ये चीज उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, गॉट इट। हाँ सर। तो ये बेसिक ग्राफ होता है, ये बेसिक, ये ऑटोमेटिक। अगर हम मान लो कि ये कह रहे हैं कि ईयर करे और ये चेंज ना हो, उसका भी मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो, इंटरेक्शन जो बोलते हैं कि बाय डिफॉल्ट देखो कोई भी ग्राफ होता है, आप चेंज करोगे तो दूसरा चेंज, जैसे मान लो कि हम यहाँ चेंज करते हैं तो वो चेंज हो जाएगा, कोई भी चीज एक दूसरा, कोई भी ग्राफ में चेंज करोगे वो दूसरा ग्राफ चेंज होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जब हम स्लाइसर चेंज करें, ठीक है, तो ये चेंज ना, टोटल सेल्स हमेशा टोटल सेल्स दिखाए। तो कैसे करेंगे हम उसको, फॉर्मेट में जाएंगे, मतलब वो डिटेल में बताऊंगा, और एडिट इंटरेक्शन करते हैं और इसको हम ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, आप कुछ भी चेंज करो तो इसमें चेंज होगा, इस ग्राफ में, इसमें नहीं चेंज हो रहा, देखो टोटल सेल्स में चेंज हो रहा है, नाइस सर। ठीक है। इसमें चेंज हो रहा है टोटल हम्म। सेल्स कैटेगरी वाले में, इसमें नहीं हो रहा। तो हम इंटरेक्शन को कैटेगरी कंट्रोल भी वाला, कर, हाँ। हाँ, हम्म। कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। हम्म। बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है।
ये बेसिक रिपोर्ट बनाने का तरीका, ठीक है। ओके। हाँ, कि हम क्या हमने क्या 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 किया, एक बार समराइज करता हूँ, ठीक है। पहला क्या किया, हमने डेटा को ओके सर। कनेक्ट किया, राइट। डेटा को सोर्स कनेक्ट। से कनेक्ट किया, ठीक है, सिक्वल सोर्स, सर्वर या हाँ। एक्सेल जो भी हो, ठीक है। उसके बाद हम हम्म। डेटा को क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया, मतलब डेटा को क्लीन किया अपने हम्म। हिसाब से, जितना कॉलम चाहिए हम्म। उतना कॉलम रखा, बाकी को डिलीट किया, नेम चेंज ट्रांसफॉर्म किया। किया, स्प्लिट किया, हम्म। जो भी चीज़ें, रोज को हम्म। डिलीट किया, नल वैल्यू को वो किया, ठीक है। हम्म। उसका जब हम्म। ट्रांसफॉर्म हो गया, उसको हमने क्या किया, लोड किया किस में, मेन पावर बीआई में, जहाँ पे हमने डेटा मॉडलिंग किया। डेटा मॉडलिंग में क्या किया, हमने रिलेशनशिप क्रिएट किया बिटवीन द हम्म। डिफरेंट टेबल, हम्म। ओके। ओके सर। और उस डेटा मॉडलिंग करने के बाद हमने डैक्स लॉजिक लिखा, हमको जो चाहिए आउटपुट में, हम्म। ठीक है। हम्म। हमको जो लॉजिक चाहिए, मान लो कि हमको लॉजिक, मान लो अभी कोई कहे कि हमको मुझे सिर्फ वीकेंड का हमको सेल्स चाहिए, राइट। सिर्फ सेल्स क्या चाहिए हमको, वीकेंड का। वीकेंड का सेल्स चाहिए। हाँ, तो हम्म। कैसे निकालोगे, मतलब ये आपको सिनारियो दिया हुआ, ये आपको सिर्फ हम्म। वीकेंड का सेल्स चाहिए, ठीक है। हम्म। तो कैसे करोगे आप, यहाँ पे पहले वीकेंड डे नेम बनाओगे, डे का नाम, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मंथ नेम की जगह पे क्या कर दो आप, डे का नाम। डे का नाम कैसे करोगे, डी डी ना, डी डी, ठीक है, ओके। आप यहाँ पे एक नया ओके। कॉलम भी बनाओगे कि वीकेंड जो हो, हम्म। वीकेंड नाम से कॉलम बना लो कि अगर वीकेंड है तो हम्म। वाई आ जाए, और वीकेंड नहीं हम्म। है तो नो नो आ जाए, मतलब वीकेंड, वीकेंड नाम से, वीकेंड मीन्स सैटरडे संडे, राइट। कैसे लिखोगे आप, इफ, इसका नाम आपने मंथ नेम कर दिया ना, डे नेम चाहिए इनको, नेम गलत हो गया ना इसका, दिस इज द डे नेम, राइट। व्हाट इज दैट, डे नेम है ना। आप वीकेंड निकालोगे क्या, आप जो डे नेम है क्या है, अभी हम क्या कर रहे हैं, वीकेंड कोई चीज है तो उसको एस लिख देंगे, कोई डे वीकेंड है, वीकेंड मीन्स सैटरडे या संडे। वीकेंड का मतलब क्या है, हेलो। सैटरडे और संडे सर। हाँ, वीकेंड। तो हाँ वीकेंड। तो अगर देखो एक हम्म। इसमें रहता है इफ, जैसे सिक्वल में भी होता है कि आपको कोई हम्म। लॉजिकल टेस्टिंग करनी है, जैसे इफ डे नेम इक्वल टू हम्म। सैटरडे, हम्म। राइट, और 1 मिनट, इसको और करते हैं, इसमें और भी लगा देते हैं, और एंड आप जानते भी होगे, ठीक है। और इन दोनों में, और आई मीन आइदर इट इज सैटरडे, और व्हाट इज दैट, संडे। अगर ये सैटरडे हो या संडे हो तो क्या आना, हाँ, यस यस टेल मी। नथिंग सर। आइदर इट इज सैटरडे या संडे, इट शुड बी एस, और अदरवाइज इट विल शुड नो, क्या। तो देखो, ट्यूसडे वेडनेसडे संडे इज एस, ट्यूसडे वेडनेसडे इज नो, राइट, हाँ सर। right. So we have created weekend. So now hum, we have to calculate the sales on weekend. How to do that, we have to write a measure weekend sale. How to calculate, there is a function calculate. Calculate, we have to do the sum of sales but only on weekend. So here in calculate, what is the other argument, second is the filter, we have to do the filter argument. Filter means we have to just consider the weekend day sales, right. So here we can write weekend should be, what is the weekend, s should be y, we have
मतलब यहाँ पे वो सेल्स काउंसिडर करना जो जहाँ पे वीकेंड में वाई हो, मतलब वीकेंड हो, सैटरडे या संडे हो, तो इससे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी कार्ड ले लो, ठीक है, सेम, ठीक है। और अभी जो वीकेंड हमने किया है, वीकेंड सेल, और यू कैन शो हियर, ओके, दिस इज अ वीकेंड सेल, ओके। हेलो, हेलो, हेलो सर। ओके, गॉट इट ना। सो हाँ आफ्टर, गॉट सर। हाँ, गॉट डेटा मॉडलिंग, उसका डैक्स लॉजिक लिखते हैं। जो भी आपको, जैसे वीकेंड सेल का आपको लॉजिक लिखना, तो वीकेंड यू हैव टू राइट द लॉजिक, राइट। लॉजिक लिखे हमने, तो उससे आउटपुट मिल गया। उसके बाद हम ग्राफ एंड चार्ट के थ्रू विजुलाइज कर सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं डेटा को। दिस इज अ होल प्रोसेस, आई मीन 3 कैटेगरी में: डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा मॉडलिंग एंड डेटा विजुलाइजेशन। ठीक है, और भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में हर पार्ट को, राइट। तो आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? डू यू नो सिलेबस? हेलो आपको सर। सिलेबस, आपको सिलेबस पता है? ना सर। ओके, सो दिस इज द सिलेबस बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर। आई कैन शेयर, राइट, on WhatsApp, yeah, I mean they will share, I mean institute will share. These are the uh, I mean different category of syllabus, a detailed syllabus you ये can take. पता सर, मेरे को मेल आईडी में आया था ये पूरा हाँ, सब्जेक्ट पूरा। हम्म। हाँ, तो पूरा है ये सर मेरे पास है। हाँ, कवर हो गया पूरा, ठीक है, इस तरीके का। हाँ सर, हाँ। हम्म। ठीक है, आपके पास कोई क्वेश्चन है अभी? आप बताओ, पूछो। हाँ। नहीं सर, कुछ नहीं, क्लियर हो मेरा। तो कैसा सेशन रहा, मतलब मैं अपने फीडबैक के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ सर, अच्छा है सर आपके। ठीक है, सो अच्छा है सर, होपफुली, क्लियर होगा मेरे को। हाँ, तो पता होगा आप, मेरा पावर भी क्या हम्म, है, पर पावर भी है। ओके, तो आप इंस्टीट्यूट से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। ठीक है, आप कनेक्ट कर लेना ओके सर। इंस्टीट्यूट से, ठीक है। हम्म। कैन कनेक्ट इंस्टीट्यूट एंड हम्म। जो हम्म। भी है आपको अपने हिसाब से आप बात करना, ठीक है। ओके, नाइस टू ओके टॉक। सर। अच्छा हम्म। लगा मुझे पढ़ाने में, ठीक है। नाइस टू टॉक यू, राइट। थैंक यू। ओके। बाय बाय। ओके, हैव थैंक ए यू नाइस सर, डे। हैव ग्रेट डे सर। थैंक यू सर।